सभी ने वृंदावन दे अजब नजारे पावांगे, वृंदावन दे अजब नजारे पावांगे। कोई जावे ना जावे आपा जावांगे, कोई जावे ना जावे आपा जावांगे। वृंदावन दे अजब नजारे पावांगे, वृंदावन दे अजब नजारे पावांगे।
ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਸਵਰਗੀ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਆਈਟਮਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1974-5 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਫੀਲਡਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਕੂਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 32 ਆਈਟਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਬਜਾਜ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। परोपकारी उनका जीवन था। आज हम उनको सही ज्ञानस्थल मंदिर की टीम की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। पद्मश्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से ही ये जो आज का जो यहाँ पर ये जो 25 साल से भी ज़्यादा 26 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं, तो ये जो यज्ञ हमारा चल रहा है तो 26वां साल हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें कि हम 400 से ज़्यादा विधवाओं को जहाँ राशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ इनके बच्चों को हम स्टेशनरी देने का कार्य भी लगातार करते आ रहे हैं। उसके साथ कोई नवजन्मी बच्ची हैं, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हम 1100 रुपये शगुन राशि के साथ साथ एक बेबी ब्लैंकेट भी भेंट करते हैं। कोई दिव्यांग है उसको ट्राईसाइकिल देने का कार्य भी करते हैं। कोई जरूरतमंद कन्या है उसको उसकी शादी भी यहाँ पर संपन्न कराई जाती है। और एक सुदेश चोपड़ा जी की, श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी की याद में यहाँ पर एक ASG आई केयर क्लिनिक की ओर से आंखों का मुफ्त कैंप आज भी चलाया जा रहा है। और समय समय पर कोरोना के टाइम में भी अनेक कैंप यहाँ पर जरूरतमंदों के लिए हमने लगाए हैं। मैं
आभार प्रकट करता हूँ हमारे पूर्व मंत्री जी का, पूर्व एमएलए जी का, पूरी जो टीम कांग्रेस की आज यहाँ पर रही है कि लंबे समय के बाद आज हमें मौका मिला है रूबरू होने का। तो पहले समाज सेवा में या राजनीतिक सेवा में आशु जी या वैद जी या पूरी टीम लगी रहती है। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं आज भी मेरे को अवसर प्राप्त हुआ, मैं करके पीछे मैंने अम्बाले जाना था, अभी मैं रास्ते से मुड़ गया हूँ। मेरे भतीजे की डेथ हो गई थी, उनकी क्रिया थी, भोग था वहाँ पर, तो रास्ते से मुड़ गया हूँ। कहते पानी इतना भरा हुआ है वहाँ पे, आप पहुँच नहीं पाओगे। जीटी रोड पर तो ठीक है, पर आपने जहाँ पैलेस में वहाँ पर पहुँच नहीं पाओगे। तो आज रूबरू होना था मेरे को आज, तो मेरे को वापस आना पड़ा, तो अच्छा लगा। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं लुधियाना वासियों से अपील करता हूँ कि जो हमारा ये सेवा का यज्ञ, जो सेवा का कुंभ, जो हमारे स्वर्गीय प्रधान जगदीश बजाज जी ने चलाया हुआ है और अब प्रवीण बजाज जी जो हमारे प्रधान हैं, इसकी देखरेख में ये कार्य आगे भी होता है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि इसमें आप बढ़ चढ़कर योगदान दें। तो और मैं अंत में इतना ही सबसे कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव जाए। मैं देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से यही अपील करूंगा कि ज्ञान स्थल मंदिर का ये समाज सेवा का कार्य है और इसमें आप बढ़ चढ़ कर के भाग लें। आज के इस मंच पर वार्ड नंबर 65 से काउंसलर श्रीमती पूनम मल्होत्रा जी हैं, जिन्होंने लगातार ज्ञान स्थल मंदिर को 1100 रुपया प्रति माह इन जरूरतमंद परिवारों के लिए दान दिया है। और साथ ही जब जन्माष्टमी का पावन त्यौहार आता है और हमारी टीम इनके घर जाती है निमंत्रण देने, तो ये खुले दिल से एक जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो मंदिर के सदस्यों के आगे निछावर कर देती हैं। ऐसी ममतामयी माँ और दानी, दिलेर और मेहनती औरत एक नारी को मैं नमन करते हुए मंच पर बुलाते हुए गर्व महसूस करता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मंच पर आए और देखने और सुनने वाले भारतीय नारियों को प्रेरित करें कि जब भी समय मिले किसी दीन दुखिया की सेवा करने के लिए समय निकालें। ऐसी महान नारी जो लगातार सेवा करते हुए आगे बढ़ती जा रही है और ज्ञान स्थल मंदिर के लिए एक अहम रोल अदा करती हैं, आदरणीय पूनम मल्होत्रा। भैया ने इन्ना कुछ कहता, इन्नी मेरी हैसियत नहीं, जो प्रभु ने दिता सब लोगों वास्ते ही दिता। मेरे खान वास्ते बहुत कुछ, मेरे पहनने वास्ते बहुत कुछ, पर जिन्ना मेरे को हो सके मैं लोगों की सेवा कर सका। जिन्ना काम बाजार साहब कर गए असी लोग नहीं कर सकते, असी तो एक छोटी जी देन है जो असी दे सकते। धन्यवाद। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मौके करें तासो नीचे जाए। इस मंच से अनेकों बार हमने ये बताया है कि लाखों रुपए की दान राशि इन जरूरतमंद परिवारों में बांटी जाती है। ऐसे ही कई महान दानी सज्जन हैं जो साल में एक बार इस मंच पर आते हैं और मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने आज समय निकाला और हमें सहयोग दिया है। और इसी बीच गगन खन्ना जी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और बनवारी लाल जी हमारे इस मंच पर विराजमान है। मैं भूषण गोरा जी से रिक्वेस्ट करूँगा जो समाज सेवा के कार्यों के लिए सदैव अग्रणी रहते हैं और कल ही ज्ञान स्थल मंदिर इन्होंने आकर के समाज सेवा के इस कार्य में थोड़ा सा बदलाव किया है और वो कह रहे हैं मेरे से पहले आदरणीय बनवारी लाल जी से रिक्वेस्ट करो कि वो मंच पर आए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। ये समाज सेवा का कार्य है, न किसी जात का है न किसी पात का है, ये धर्म से उठ कर के ऊपर का कार्य है। न ये किसी अमीर का है, न ये किसी गरीब का है, न ये किसी राजनीतिक पार्टी का है। ये सभी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर समाज सेवा करने वाला ये मंच है। तभी इसीलिए ये लगातार 26वें वर्ष में एक ही झंडे के नीचे सेवा ही धर्म है उसका कार्य निभाते आ रहा है। नहीं तो 5 साल के बाद जनता उब जाती है, इलेक्शन के लिए डिमांड करती है। लेकिन ज्ञान स्थल मंदिर कभी भी ऐसी कामना नहीं करती कि किसी का दुख
किसी की तकलीफ बढ़े और किसी का दिल दुखे। हम यही चाहते हैं कि सभी अपनी मनोकामना लेकर के आए, परमात्मा उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो आइए बनवारी लाल जी के विचार सुनते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु जी और उनकी पूरी टीम और पूरी ज्ञान मंदिर बजाज साहब और उनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक आभारी हूँ कि आज इस पावन अवसर पर इस छोटे से सेवक को यहाँ आने का मौका दिया। यहाँ आकर मैंने देखा कि संसार में बहुत से काम लोग कर रहे हैं, पर ऐसा पुनीत कार्य जो ये कर रहे हैं, जो विधवाएं हैं, जो इनका घर पे चूल्हा नहीं जलता, उनको मासिक राशन देकर, और जो कन्याएं हैं उनके लिए सिलाई स्कूल, ब्यूटिशियन और भी इतने कोर्स ये करवा रहे हैं। लोग बहुत से कार्य करते होंगे, पर ऐसा पुनीत कार्य आज मैंने पहले एक ही छत के नीचे पहली बार देखा है। और ऐसा कार्य कि जिसमें निस्वार्थ है, और जो ये राशन दे रहे हैं उनकी क्वालिटी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर के लिए कोई परचेजिंग करने जा रहा हूँ। ऐसी क्वालिटी का ये नहीं कि राशन देना है कोई कैसा भी हो, उसकी क्वालिटी हर चीज़ बहुत मेंटेन की हुई है। मैं जगदीश बजाज जी जिन्होंने इस सब का शुरुआत की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो आज भी हमारे सबके बीच में ही है, क्योंकि उनके जो दिखाया गया मार्ग है वो आज भी वैसे ही चल रहा है। उनके जो सपुत्र है वो उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वर्मा जी है, जो पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ऐसा कार्य में दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की है। देखो कि संसार में बहुत से धार्मिक कार्य होते हैं, हो भी रहे हैं, होते भी रहेंगे, पर ऐसे कार्य बहुत कम लोग करते हैं जो इसके बारे में सोचते हैं। इन सब टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बाकी लुधियाना वासियों को भी इसके साथ जोड़ें और सबको इसके साथ लेकर चले। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे महानुभाव हैं जो सरकारी सर्विस से रिटायर होते हैं और अपने जीवन का एक एक पल ज्ञान स्थल मंदिर को निछावर कर देते हैं। ऐसे ही महान सेवक हैं हमारे रोशनलाल शर्मा जी, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के लिए लगातार दान राशि लेकर के तो आते हैं, लेकिन साथ ही अपना समय और अपना धन भी ज्ञान स्थल मंदिर को डोनेट करते हैं। जब ये बोलते हैं तो शायद बाइक वाला भी घबरा जाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपना धैर्य बना करके रखें, क्योंकि इनकी कड़क आवाज़ है। सामने वाला जो 100 रुपया देने वाला है वो सोचता है इनकी आवाज़ में 500 रुपया दान दे, क्योंकि ये एक जमीन लेवल के वर्कर हैं। इन्होंने खुद देखा है कि जरूरतमंद परिवार की दुख और तकलीफ क्या है। तो आइए उनसे मिलते हैं आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जरूरी नहीं कि जगह पर हर वक्त खुदा का नाम आए, वो नरमा भी इबादत का होता है जब इंसान इंसान के काम। बहुत ही सत्कारक साढ़े एक्स मिनिस्टर साहब, साढ़े होता है समझ नहीं लेता और भी नहीं बोले नहीं होता। और समाज के अंदर जिन्नी सेवा साढ़े एक्स मिनिस्टर साहब ने की है, और कुलदीप बैज जी जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, और ईश्वर जोत सिंह मल्होत्रा जी, और जो सारे कांग्रेसी लीडर वर्कर इत्थे पहुंचे है, और मैं उन्होंने दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद भी करदा और आस भी करदा कि आने वाले समय के अंदर समाज की इन्हें सेवा करेंगे। कोई नहीं, कोई समा हुंदा, समय ने धोखा दिता, कोई यहो जी गल नहीं। समा 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 किसी का साथ नहीं देता, समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। सो साढ़े परवीन बजाज जी कोई आ रहा देवे, कोई परवीन बजाज जी, मैनू डेंगू बुखार भी है ना, परवीन बजाज जी और साढ़े हल्के के मेरे अजीज
ਬਖਤਰਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭੂਖੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਉਜੜੇ ਕੋ ਪਛਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 32-35 ਆਈਟਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਢਾਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करनी चाहे वो ऐसे महान सेवक इस समय हाजिर हैं पाजी जिन्होंने पंजाब में अमन शांति कायम की। उस परिवार के पोते रवनीत बिट्टू जी इस समय इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय पूजनीय सांसद सत्कारयोग रवनीत बिट्टू जी का इस मंच पर स्वागत है। पाजी आदरणीय दानवीर करण श्री मदन गोयल जी आज के इस समारोह में विशेष तौर पर हमारे बीच आए हैं। दानवीर करण मदन गोयल जी का भी स्वागत है। व्यापार जगत के लिए एक नया आयाम कायम करने वाले आदरणीय हरकेश मित्तल जी भी इस समय इस मंच पर हैं, उनका भी स्वागत है। और सत्कार जो सरदार अजीत पाल सिंह जी भी जो कि समय निकाल करके ज्ञान स्तर मंदिर के इस मंच पर आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार फिर से रोशनलाल शर्मा जी अपने चंद विचारों के साथ आपके रूबरू होंगे। आदरणीय रोशनलाल शर्मा। वीरेंद्र शर्मा और मैं भी उठे थे, विजय चोपड़ा जी भी उठे। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ सके। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ पूर्ण करना। और कांग्रेस के सीनियर नेता हरजोत चीमा जी और ईश्वर जी जो कह रहे हैं कि आशु जी को बुला लें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंच पर आएं, अपनी मधुर वाणी से हम बच्चों को आशीर्वाद दें। आदरणीय ईश्वर जो चीमा जी जो कि हाइट से भी काफ़ी
लंबे हैं और जब बातचीत करते हैं तो भी वो लंबी बात करते हैं। तो आज मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि संक्षिप्त और छोटी बात करके अपने आशीर्वाद दें। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਟਮਸ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। किसी भी संस्था का कार्यक्रम माँ लक्ष्मी की अपार कृपा के बिना नहीं चलता है और जब जब सरकारी फंड आते हैं तभी ये एनजीओ आगे कार्य कर पाती है और जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर एनजीओ का दिखाया हुआ एक दिया रोशनी करता है। मैं समाज सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दर्शनलाल बवेजा जी का ऋणी हूँ। जब जगदीश बजाज जी इस संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में लीन हो गए तो हमें उनके जैसा कोई व्यक्तित्व चाहिए था। आदरणीय बिट्टू जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दर्शनलाल बवेजा जी को ज्ञान स्थल मंदिर के साथ जोड़ा और लगातार ये समाज सेवा के इस कार्य को आगे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब 5 साल पहले जो वस्तु जिस रेट में थी आज वो वस्तु के रेट महंगे हो गए हैं और कई लेडीज के बातचीत आती थी कि हमारे बच्चे 4 हैं, जो आप राशन देते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो दर्शनलाल बवेजा जी ने बजाज साहब की एक बात को फिर से दोहराया कि इनका जो राशन है वो 1.5 गुना कर दिया जाए। महंगाई को दौर को देखते हुए भी दर्शनलाल बवेजा जी ने कहा जो बजाज जी ने चालू किया था उसको जारी रखना है। आज भी जिनके बच्चे 4 हैं या 3 हैं उनको 1.5 गुना राशन दिया जाता है और जिन परिवारों का कोई बच्चा नहीं है उनको 1 महीना छोड़ के राशन दिया जाता है कि वो वेस्ट ना हो। ऐसे महानुभाव हैं जो रोज इस संस्था के कार्यक्रम को समझते हैं और उसकी बारीकियों में जाकर काम करते हैं। और दूसरे दानवीर करण हमारे अश्विनी गर्ग जी हैं, ज्ञान स्थल मंदिर की मीटिंग में आते हैं और जो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं उनको रोकते हैं और जो एक्सपेंस हमें मिल सकते हैं उनकी बात करते हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आज दानवीर करण श्री मदन लाल गोयल जी हमारे बीच हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि हमारे सांसद साहब ने आगे किसी कार्यक्रम में जाना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी मदर वाली से इन जरूरतमंद परिवारों के जख्मों के लिए जो मल्हम उनके पास है उसकी थोड़ी सी मल्हम इनके लिए पेश करें। और मैं आपका ऋणी रहूंगा कि आप समय निकाल करके आज हमारे पास आए। बहुत ही आदरणीय रवनीत सिंह बिट्टू जी। तो मैं साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने इस जोत को जलाया, मैं उन्होंने जरूर याद करूंगा। मैं उन्होंने ऐ लगता सी बुत नहीं गा, खैर वो आप ही बैठे साढ़े सत्कारयोग जगदीश बजाज जी। उन्हों तो पहला सारा ही साडा हिंद समाचार ग्रुप बाबू जी होनी जड़े कि उन्होंने एक मैं समझ ना सके भरावां वाला प्यास अज उन्होंने बहुत ही सत्कारयोग साडे उन्होंने होनहार पुत्र वो उस तरीके उही शक्ल उही अकल उही सेवा की भावना को लैके चल रहे हैं।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 26 ਸਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦਸੌਂਧ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद। उनके गले में माता रानी की चुनरी पहनाएंगे और बहुत ही सत्कार है कि दानवीर करण मदन गोयल जी जो कि समाज सेवक हैं और धार्मिक विचारों के हैं,
और धर्म की मर्यादा को रखने वाले हैं और धार्मिक स्वभाव के हैं, उन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर के लिए ये सेवा कार्य लिया है। मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ। और समाज सेवा के ऐसे कार्य में एक बार फिर से जिन डॉक्टर साहिबान ने आज यहाँ पर मेडिकल कैंप में अपना समय डोनेट किया है, उनको आदरणीय रवनीत जी कर रहे हैं। मैं इनको यहाँ पर सम्मान दिलवाते हुए गर्व महसूस करता हूँ। और आज 311 मासिक वितरण समारोह के उपलक्ष्य में जहाँ पे आए हुए गणमान्य व्यक्तिगण, मेरे भाई श्री भारतभूषण आशु जी, जो हमारे शहर की एक पहचान है, कोई माने ना माने हम तो मानते हैं। उनके साथ आए हुए एक्स MLA कुलदीप बैग जी, मदन लाल गोयल जी, चीमा जी, मेरी बहन पूनम मल्होत्रा जी, बनवारी हरजाई जी, दर्शन लाल लड्डू जी, हरकेश मित्तल जी, और जिसका मैं नाम नहीं जानता माफी चाहता हूँ। सबका जहाँ पे आए हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। बाकी आपको तो सबको मालूम है कि ये उपराला क्या हो रहा है, ये आसान नहीं है। आज 26 साल हो गए इस उपराले को चलते हुए। विधवाओं को राशन देना, टोटल 32 आइटमें इस राशन में दी जाती हैं, वो सारी ब्रांडेड होती हैं। भाई वाशु जी को सब चीज दिखा दी है, उनको तो वैसे पहले ही मालूम है। पर मुश्किल ये है कि अब कुछ फंड में कमी आ रही है, क्योंकि बजाज साहब कहते हैं कि सेवा किसी कीमत पे रुकनी नहीं चाहिए। जो हमारे को देश हुआ है, जगदीश बजाज जी ऐसा बूटा लगा रहे हैं, उसको थोड़ी सी सींचने में मुश्किल हो रही है। तो आप सबका सहयोग चाहिए हुए आए वाले मेहमानों का मैं अपनी तरफ से और ज्ञानस्थान मंदिर की तरफ से चाहूंगा कि आप इस पावन जगह में मंथली कोई ना कोई सहयोग अपने परिवार की तरफ से दें, क्यों दिया हुआ पुण्य तो आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को ही लगना है। ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबका जहां पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय हरकेश मित्तल जी इस समय मंच पर विराजमान है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए और मीठी और मधुर वाणी के साथ संक्षिप्त शब्दों में अपना विचार रखें। हम सब इस समाज सेवक यज्ञ में उपस्थित सभी का जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। हर इंसान कुछ न कुछ इस यज्ञ में उठी डालता है और यहाँ पे उनको पूरा मान सम्मान भी मिलता है। और एक्चुअल जो सेवा है वो इस ज्ञानस्थान मंदिर की है, जो 26 साल से कंटिन्यू करती आ रही है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ओटी में अपनी ओटी डालें और समाज की सेवा में अपना हिस्सा बताएं और ये समाज की जो त्रुटि को दूर करके एक समाज के नाम पर एक अच्छा काम करें। हम उनके साथ जुड़कर इस संगठन को और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज के इस मंच पर विराजमान है सत्कारयोग सरदार कुलदीप बैग जी, जो कि पूर्व विधायक भी है और ज्ञान स्थल मंदिर के नज़दीक इन्होंने पिछले कई साल गुजारे, यानी कि 12-13 साल की उम्र में ये ज्ञान स्थल मंदिर के आसपास ही रहते थे और सरकारी सेवा करने के बाद भी राजनीति में आकर जनता की सेवा की और ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच पर आए हैं। इनका स्वागत है। जय श्री राम। श्री ज्ञान स्थल मंदिर के मैनेजमेंट के नाल जिस तरह भाई साहब ने दसिया कि ये मेरा अपना ही इलाका है। मैं फील्डगंज 7 नंबर कूचे के जमिया पलिया ते शाहपुर रोड पे जो स्कूल है खालसा नेशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, उत्थे 10वीं क्लास तक पढ़िया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज पढ़िया। सो ज्ञान स्थल मंदिर के संस्था के नाल मैं 74-75 तो जुड़िया। इत्थे आके मन को बड़ा सुकून मिलता है।
जो बजाज साहब की फैमिली ने, बजाज साहब ने एक काम शुरू किया सी, बहुत ही शलाघायोग है। साढ़े जेडे गरीब परिवार ने, साडियां विधवावां ने, जिन्हां दे कोले कई बारी खाण नूं कुछ नहीं हुंदा, उन्हां वास्ते इहो जिहा जिहड़ा राशन वंड समारोह है ये पिछले 27 साल तो लगातार चल रहा। मैं मुबारकबाद दिना सारी मैनेजमेंट, बड़िया थावां ते जाण का मौका मिलता है, बड़िया संस्थावां दे नाल जुड़े हुए हैं, पर जिहड़ा यूनीक काम ज्ञान सथल मंदिर की मैनेजमेंट ने किया है वो अपने आप के बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जिस तरह सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी जिहड़े साडे मैंबर पार्लीमेंट है वो भी कह के गए ने, श्री भारत भूषण आशू जी जिहड़े साडे कैबिनेट मिनिस्टर रहे ने उन्होंने भी तुहानूं मुखातिब होना है। सो मैं एक बार फिर साडे वालों सारी मैनेजमेंट में जिन्हें भी लोग इत्थे इस संस्था के नाल जुड़े हुए हैं तुहानूं मुबारकबाद दिना। जय हिंद। रजिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हर साल इन जरूरतमंद परिवारों के लिए 400 किलो चावल भिजवाते हैं। अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भारत भूषण आशु जी, जिन्होंने जनता की सेवा करते हुए अपना तन, मन और धन निछावर किया और सेवा के लिए आगे ही आगे बढ़ते रहे, और अब भी इनके कदमों में वही तेजी है और चेहरे पर वही रौनक है जो इनकी मंत्री होने के समय में थी। आज मैं इनके चेहरे पर वही रौनक देख रहा हूं, तो मंच पर उनको बुलाते हुए गर्व महसूस करता। आदरणीय स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के चरणों जिन्हां दी मेहनत सदका उद्यम अज फल फुल रहा है। शलाघा करदा सारी कमेटी दी, प्रवीण जी और उन्होंने टीम जिहड़े उन्ने ही जोश नाल उस ही जोत नूं जिहड़ी जोत श्री जगदीश बजाज जी ने विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा नाल जगाई सी, उन्होंने अगे लैके चल रहे। किसी भी समाज सेवा के काम नूं करन दा जज्बा हरेक च हुंदा है कि वो कोशिश भी करता है, पर जिस तरीके वैद साहब ने कहा उसकी कंटिन्यूटी इन्नी लंबे समय तक रखना बहुत मुश्किल होता है। शर्मा जी बोल रहे थे कि इस उद्यम नूं कंटिन्यू रखने लई बड़िया मुश्किलां बड़िया औकड़ां, ये सही गल है। हर प्रोग्राम नूं हरेक सेवा दे काम करन नूं जारी रखण नूं चलाउण नूं पैसे दी फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है कि अज किसी न किसी तरीके मैं समझदा जिस तरीके सामने आख्या कि राशन भी बढ़ा देता, राशन महंगा भी हो गया, कि कुछ संस्था फाइनेंशियल क्राइसिस भी जरूर होगी। और ये अपील है सारे वध चढ़ के अगे ये हिस्सा लेना भी चाहिए। और मैं देखिए कि इस काम दे विच बजाज साहब नूं तो मैं झोली अड़ के मंगते वे, क्यों बिट्टू जी कि अज असी समझ लीए भी ये प्लेटफार्म एडा वड्डा हो गया तो इत्थे साडा नाम बनूगा। नाम तां बनदा जदों अपने आप नूं तुसीं मिट्टी च कर लैंदे तो उस बंदे ने अपने आप नूं मिट्टी करके किन्ने घरां दी रोटी जगा के रखी है। काबिल तारीफ है और आप एग्जाम्पल बनया इस लुधियाने की संस्थावां वास्ते भी किस तरीके अगर तुसीं सेवा करन दा जज्बा रखते हो, सेवा करनी किस तरीके चाहिए। नहीं तो बंदे का हौसला टुट जाता, यार कोई मदद नहीं कर रहा तो चलो मैं ही कला सेवादार हाँ, बाकी किसी को जरूरत नहीं है, पीछे हटता है, कदम पीछे करता है। पर इस टीम ने कभी कदम पीछे नहीं करे। और जदों मैं आके हुण भी देखिया है और कली जरूरतमंद विधवावां नूं राशन देना इत्थे तक सीमित नहीं, किसी को किसी तरीके की जरूरत है, किसी अपाहजा नूं कोई लिम्स चाहिए आर्टिफिशियल वो प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो ट्राईसाइकिल है, चाहे
ਗਰੀਬ ਕਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਜਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਣੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ, रतन लाल अंकल खड़े हैं, शर्मा जी है, अजीत बत्रा जी है, बिट्टू गुंबर जी, भूषण लाल, भूषण गोरा जी कहते जी आशू इतने नहीं आता, कहते मैं लेके आऊं। मेरा भरा राकेश बाहर ही कहता, कहता शुक्र है तू आया। आया तो भाई मैं अगे भी 2-3 बार सी। ਜਦੋਂ मैं पहली बार कौंसलर ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 500 ਸੀ, 1500 ਸੀ, 1800 ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਰਖਾ ਲਏ ਸੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ ਸੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਹੀ ਜਾਣਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ एक कायनात है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ, ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ श्री जगदीश बजाज जी, वो जज्बा साडे अंदर मौजूद है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ। बहुत मेहरबानी, परमात्मा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। संसार से प्रभु चरणों में लीन हो गए तो एक झांकीकार ने इस मंच पर छोटे और बड़े तारे जो आप इस समय देख रहे हैं वो लगाए, जिससे कि वो इस संस्था लगातार सेवा का कार्य जारी कर सके। और मैं सभी जो मेडिकल फील्ड के डॉक्टर यहाँ पर हाजिर हैं उनको विशेष तौर पर सर्वदेश चोपड़ा जी के नाम से जो प्रमाण पत्र भरे हैं वो यहाँ से भेंट करने जा रहा हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सर्वदेश चोपड़ा जी की याद में जहाँ पर भी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और उन डॉक्टरों को विशेष तौर से पंजाब केसरी परिवार की तरफ से एक बेहतरीन सर्टिफिकेट और एक मेडल भिजवाया गया है। डॉक्टर बिंदर कुमार जी जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं और विशेष तौर से ASDI हॉस्पिटल लुधियाना में कार्यरत थे। इनको शामिल कपूर जी मेडल पहना रहे हैं और दानवीर मदन गोयल जी उनको ये प्रमाण पत्र भेंट कर रहे हैं। अगले अवार्डी है सत्कार जो सुरजीत सिंह जी।
बहुत ही श्लाघायोग बात। किश्ती चला करके आने वाला माहौल था, उसमें भी इन्होंने सुबह 9:30 बजे मेडिकल चेकअप कैंप आरम्भ किया। धन्यवाद है। और गोपाल जी जो कि इसी टीम के मेंबर हैं और सुबह से सेवा में लगे हुए हैं, मैं इनका भी विशेष आभार प्रकट करता हूं और मंच से सभी वीआईपी साहिबान की तरफ से उनको ये विशेष सम्मान दिया जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि हमारे फाउंडर मेंबर रतनलाल गर्ग जी जो कि जगदीश बजाज जी की राइट हैंड की तरह काम करते रहे और लगातार हमारे पीठ के पीछे खड़े होकर सेवा का कार्य करवा रही हैं। अनु कुमारी जो कि हमारे यहाँ से विशेष कोर्स करने वाली छात्रा है, उसको स्टिचिंग में 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया है। और हमारे दर्शनलाल बवेजा जी विशेष तौर से उनको ये मेडल पहना रहे हैं और ज्ञान स्थल मंदिर का ये प्रमाण पत्र उनको भेंट किया जा रहा है। मैडम हाँ मैं आभारी हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभी मेहमानों का। गोल साहब आशु जी थोड़े नाल हो जाओ। और आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और आज के हमारे आदरणीय हरकेश मित्तल जी जिनका जन्मदिन भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस मौके पर ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से विशेष समृद्धि चिन्ह और पगड़ी आपके लिए बनवाई गई है। और जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये भी एक ऐसे हमारे समाज सेवी और हमारे सदस्य हैं जो लगातार सेवा का कार्य करते हैं। लड्डू जी पीछे लुके हुए हैं, लड्डू जी लगे ले आओ, लड्डू लगे ले आओ। हाँ ठीक। बिट्टू कुंवर जी इस संस्था को इस समाज सेवा के कार्य के लिए विशेष तौर से दिए हैं। और हमारे गिरीश गुप्ता जी और प्रवीण बजाज जी ने विशेष तौर से इनसे संपर्क करके इनको ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा यज्ञ के साथ जोड़ा है। शमशेर चौहान जी जो कि नए सदस्य बने हैं, उनका भी मंच से सम्मान किया जाएगा। हाँ जी बाजी बराबर हो जाओ। चौहान जी जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के इस सेवा यज्ञ में शामिल हुए हैं और ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम इनका सम्मान कर रही है। ये सेवा का ऐसा यज्ञ है कि अगर आप खाली हाथ भी आएंगे तो आपकी झोलियां भर के यहाँ से भेजेंगे। ये हमारे यहाँ के वातावरण में है, ये संस्कार है कि ये संस्था जितनी सेवा करती है, अगर यहाँ पर आकर कोई अपनी मनोकामना रखता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे वार्ड नंबर 65 की काउंसलर साहिबा श्रीमती पूनम मल्होत्रा जी जो कि लगातार ज्ञान स्थल मंदिर को 1100 रुपये की अनुदान राशि देती है। और जब भी ज्ञान स्थल मंदिर का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें खुद चल के आती हैं और दान राशि देती है। मैं ज्ञान स्थल मंदिर के सदस्यों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और अशोक सराना जी जो कि भूल के व्यापारी हैं और भोजपुरा बाजार के पास ही इनकी दुकान है और लगातार जगदीश बजाज जी के साथ इनका गहरा संबंध था और ये आज भी इस ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच पर आए हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और प्रसिद्ध समाज सेवक अवनीश जैन जी हमारे बीच आए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही इन्होंने अपनी नेक कमाई में से
इन जरूरतमंद परिवारों के लिए 5100 रुपया भिजवाया है अवनीश जैन जी और उनकी धर्मपत्नी। विशेष तौर पर हमारे अश्विनी गर्ग जी, रतनलाल गर्ग जी, लड्डू जी थोड़ा क्या विधायक कुलदीप बैद जी, मदन गोयल जी, दर्शनलाल बवेजा जी, सरदार अजीत पाल सिंह जी मिलकर के ये सम्मान दे रहे हैं। थोड़ा खोलोगे, थोड़ा खोलोगे। हाँ जी। इसमें अवनीश जैन जी उनके साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और 5100 रुपया इन्होंने इन जरूरतमंद परिवारों के लिए दिया है। धन्यवाद। कमी आती है, इन तक खबर पहुंचती है तो ये बड़े इंडस्ट्रीज से बात करते हैं और उस धन की कमी को पूरा करने में सहयोग देते हैं। सत्कार जो सरदार अजीत पाल सिंह जी। और जो दादी का लगाया हुआ पौधा होता है उसमें पौधा बिट्टू गुंबर जी और प्रधान प्रदीप बजाज जी ये सम्मान दे रहे हैं। और दानवीर करण सीतापुर के खजाने तक पहुंच चुका है। इन्होंने 5 की सेवा का कुंभ है, जो जितनी लोग के लगाता है उतना ही उसको पुण्य मिलता है। और पुण्य कमाने के लिए आज के इस युग में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं है कि आप उसको व्यापार करके हम गुजारिश करते हैं सीता परमात्मा से। और ये इसी तरह दीन लोगों की सेवा के लिए अपना तन मन और धन निछावर करते हैं। आज की डेट में अगर समय है प्रवेश कर चुका है और इसकी सफलता का राज है कि आज हमें किंग एक्सपोर्ट के मालिक दानवीर सर आदरणीय बन्नू बहल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी सर पद्मश्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद से लगी आदरणीय बवेजा जी, श्री गोयल जी, सरदार अजीत पाल सिंह जी, राजेंद्र गर्ग जी, भूषण गोरा जी, इसी संस्था के प्रेसिडेंट प्रवीण बजाज जी, कार्यकारी प्रेसिडेंट बिट्टू गुंबर जी, फाउंडर मेंबर रतनलाल गर्ग जी। आज का ये राशि वितरण समारोह आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जो कि स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी को समर्पित था। बैकुंठवासी श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए हम सभी इस देश में जो नागरिक हैं उनकी अच्छी कामना करते हैं और उनको शुभ आशीष देते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और ये जो जरूरतमंद परिवार हैं जो यहाँ से राशन लेते हैं वो जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने और अपने परिवारों का पालन पोषण करने वाले बने। हम एक बार फिर से दुआएं देते हैं और आप सभी का दिन मंगल में हो और हम आपसे विदा लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय हरकेश मित्तल जी का आज जन्मदिन है, उसके लिए मंदिर सभा की पूरी टीम उनके लिए शुभकामनाएं देती है और दुआ करती है इनको अच्छा स्वास्थ्य मिले और लंबी आयु हो। लड्डू तुम दुआ करियो, कोई भी आ गया से कोई ਅੱਜ ਇੱਥੇ 311ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ 311 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਏ 4 ਹਟ ਗਏ ਹਟਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ
ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ICU ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 400 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ 2000 ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੂਪ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 311ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਦਨ ਗੋਇਲ ਜੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਵੇਜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। 400 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ। 311ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 400 ਤੋਂ ਵੱਧ 412-13 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇਈਦਾ। ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਅੰਗਹੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 311ਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ 8ਵੀਂ ਬਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। नमस्कार, मैं नरेश गोयल, सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर चौक सुबानी बिल्डिंग लुधियाना। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि ज्ञान स्थल मंदिर सभा का यह राशन वंड समागम महीने के दूसरे इतवार को आयोजित किया जाता है। 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को इतों राशन समग्री वंडी जाती है तो जरूरतमंद बच्चियों की शादी इस संस्था वालों करवाई जाती है। अज विशेष तौर पर स्वर्गीय श्रीमती सवदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि को समर्पित अज का यह राशन वंड समागम से जिथे ज्ञान स्थल मंदिर सभा ने उन्हों की याद दे विच एक मैडिकल चैकअप कैंप भी आयोजित किया, जिथे सैकड़ा ही जरूरतमंद परिवारों ने अपने अखां का चैकअप करवाया। और ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से आने वाले सारे VIP सज्जना ने आदरणीय और स्वर्गीय श्रीमती सवदेश चोपड़ा जी को श्रद्धा सुमन भेंट किए। मैं बहुत ही आभारी हाँ पंजाब केसरी के मालिक पद्म श्री विजय चोपड़ा जी का, जिन्हों ने 1997 के पद्म श्री विजय चोपड़ा जी ने यह मुहिम चलवाई और जरूरतमंद परिवारों को मदद देने का यह रास्ता दिखाया। और साढ़े फाउंडर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी ने सानू इस तरह इस सेवा के काम के लगा के और लगातार इस संस्था वालों हर महीने सेवा हो रही है। मैं देखने के सुनने वाले